Hello students, so today I am back again for the numericals of lengths. Is it clear? So I am going to solve today page number 184 and question number 2. Question number 2. So first we are going to write given. ठीक है बच्चों, तो given में बोल रहा है a convex lens. So they are talking about type of lens. It is convex. Convex means third case. Okay, third type means first was concave mirror, then convex mirror, then convex lens, then concave lens. So this is all about convex lens, in which we have 6 ray diagrams. Is it clear? Next, forms a real and inverted image. So it forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. That means the image is formed at a distance of 50 centimeter from it. So that means this is what image is formed, my dear students. So this is all about image distance, which we denote as V, and V is 50 centimeter. Is it clear? Where is the needle placed? So where should you keep the needle? Here needle is object. So we have to find what object distance, which is U. U is question mark. Is it clear? If the image is equal to the size of the object, such that image is equal to the size of the object, yani it is said that object size, which is h, is equal to image size, which is h dash. That means they are saying that h equal to h dash. We know that whenever h equal to h dash, the magnification is always 1. Is it clear? So my dear student, so ultimately we have to find the power also. We have to find power also. तो बच्चों दो चीज़ आपको निकालना है, एक u और दूसरा power. So this is to find. Is it clear? So next I am talking about procedure. Is it clear, my dear students? Now sign convention. You know that image distance. So this is a real image. So this is a real image. So where real image is formed in convex lens, right or left? Real is formed in the right side. तो इसका रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. देखिए बच्चों, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है. F आपको निकालना है. So the real image is formed on the right side. So you know that this is positive. And real and inverted means h dash is negative. When h dash is negative, m will also be negative. So here we have negative. So this is real. ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई रे डायग्राम याद करने, कोई भी साइन कन्वेंशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ m. M is equal to V by U. This is the formula. याद रखिए, मिरर के फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे V लिखते थे, लेंस के फॉर्मूला में बस आपको M equal to V by U लिखना है. One formula I missed in my recording. The formula of M is V by U equal to H dash by H. This is in the case of lens. But in the case of mirror we used to put minus over here, जो लेंस के केस में नहीं है बच्चों. ठीक है बच्चों, चलिए. Now what is m? M is -1 equal to what is v? V is 50 by u. So minus u equal to 50, u equal to minus 50. How much centimeter? So my dear student, we got V. Next we are going to use
लेंस फार्मूला यू कैन राइट 1/v प्लस नहीं माइनस इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज़ 1/v? 1/50 दिया गया है माइनस 1/50 इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, 1/50 प्लस 1/50 इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, ऊपर 1 + 1 इक्वल टू 1/f। यू विल बी गेटिंग 2/50 इक्वल टू 1/f। 2 1 = 2, अब कट करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डुक 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 1/25 इक्वल टू 1/f बच्चों। ठीक है, आपको चाहिए पावर, यू नो दैट पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ नहीं चाहिए ना, आपको केवल पावर चाहिए, तो सीधा आप लिख सकते हो 1/25 इक्वल टू पावर। रीज़न वाई? बिकॉज वी नो दैट पावर इज 1/f, तो 1/f के जगह पे आप पावर लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली पावर इज, अगर इसको कट करेंगे तो 0.04 यू आर गोइंग टू गेट डायप्टर। तो यूनिट बराबर लिखिए। सो ऐसे करके बच्चों हमने पावर निकाल लिया और हमने यू भी निकाल लिया। इज इट क्लियर? तो आराम से गिवन लिखिए, साइन कन्वेंशन पुट करिए, फॉर्मूला लिखिए, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, तो बताइए अब यहाँ पे इसके हिसाब से फोकल लेंथ मेरे को मिल रहा है 25, तो ये बच्चों f है बच्चों, ये है 2f। ठीक है बच्चों, तो u को कहाँ रखा हमने? 50 में रखा। सो हियर आई केप्ट दी ऑब्जेक्ट, बिकॉज यू नो दैट आप यहीं रखोगे तभी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों सेम मिलेगा। तो यहाँ से लाइट रे गोस एंड पासेस थ्रू फोकस एंड गो स्ट्रेट, एंड हियर यू विल गेट A, B, this is A dash and this is B dash. Is it clear? And this distance F, वही 2F तो लिख दिया गया है। ये जो है बच्चों, ये है 25, ये कितना है बच्चों? 50, और ये भी कितना है? 50। इसको बोलेंगे V, इसको बोलेंगे F, और इसको बोलेंगे U। That's all। फिगर भी बन गया, रे डायग्राम भी बन गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसको लिख लीजिए, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन रीड, तब तक मैं रब कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों? आपको फोकल लेंथ दिया है 2 मीटर। क्या दिया है? 2 मीटर। बच्चों लास्ट सम में एक छोटा सा गलती हो गया। गलती ये हो गया कि वी गॉट 1/f इक्वल टू 1/25 मिला था, राइट? द मिस्टेक वॉज द यूनिट वॉज गिवन इन सेंटीमीटर। आपको मीटर में चेंज करना था। किस में? मीटर में। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, विच इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर आप ये 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 25/100 मीटर। तो बच्चों उसका आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। इज इट क्लियर? अभी आप निकालिए पावर इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ इज 1/0.25 इंटू 100/100। आपको बच्चों मिलेगा 100/25, कैंसिल करेंगे 4, तो पावर इक्वल टू 4 डायप्टर बच्चों। तो लास्ट समय गलती हो गया था, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, बिकॉज द यूनिट वॉज सेंटीमीटर। बिफोर फाइंडिंग द पावर द फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। फोकल लेंथ को मीटर में रहना ज़रूरी है, तभी पावर निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। इज इट क्लियर? तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, बताइए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है F इक्वल टू 2 मीटर। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या है बताइए? बताइए क्या है? 1/f। तो 1/f को क्या लिखेंगे? 1/2 डायप्टर। अब डिवाइड करोगे 0.5 डायप्टर। सिंपल क्वेश्चन।
चलिए बच्चों, अब आ जाइए पेज नंबर 186 में। पेज नंबर 186 में वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। चलिए पढ़िए 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 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। अभी हम लोग 5 मिनट में सॉल्व करेंगे इसको। कम ऑन कम ऑन। क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो बच्चों इसका क्या मतलब है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ये बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट साइज के बारे में, जो है h, जो है 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बोलिए प्यारे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको u बोलेंगे, एंड u इज 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट ए मिनट बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं दूसरे क्वेश्चन में जंप कर गया। 25 सेंटीमीटर है बच्चों, ये है 25 सेंटीमीटर। ओके, अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं बच्चों? बोलिए किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स को, बिकॉज आपको मालूम है दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। तो आप ये देख रहे हैं कि सारा किरण कहाँ जमा हो रहा है? फोकस में हो रहा है। सो इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर? और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या दिया है? फोकल लेंथ इक्वल टू f 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपको निकालना है, रे डायग्राम बनाना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो यानी आपको बहुत कुछ निकालना पड़ेगा बच्चों टू फाइंड। पहला काम, यू हैव टू ड्रॉ रे डायग्राम। दूसरा इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है v। तीसरा आपको निकालना है साइज। तीसरा आपको निकालना है साइज एंड नेचर, साइज। और फोर्थ आपको निकालना है नेचर। ठीक है बच्चों? फोर्थ के निकालना है नेचर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले साइन कन्वेंशन सेट करते हैं। आपको मालूम है u इज ऑलवेज पॉजिटिव, v इज ऑलवेज नेगेटिव। इन फोकल लेंथ मैंने बताया था। और फोकल लेंथ याद करिए, आपके कॉन्वेक्स में यहाँ रहे वहाँ रहे। कॉन्वेक्स के केस में इट इज़ कमिंग ऑन दी व्हाट, राइट हैंड साइड, उस तरफ आ रहा है। ये आपका था कॉन्वेक्स, यहाँ आ रहा था फोकस बच्चों। तो ये होगा पॉजिटिव, तो फोकस को कर देंगे पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अदरवाइज आपको याद होगा माइनस प्लस प्लस माइनस, कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स देखिए दोनों केस में पॉजिटिव आ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर बोलिए, कॉन्वेक्स लेंस बोलिए, दोनों में फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए ये भी एक टेक्निक है याद करने का। कॉन्वेक्स बोले तो हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव बोले तो हमेशा नेगेटिव। फोकल लेंथ, ठीक है ना, लेंस हो या मिरर हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यूजिंग व्हाट, लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? 1/v minus 1/u equal to 1/f. 1/v minus 1/25 equal to 1/10. 1/v, ये माइनस और ये माइनस मिलके बच्चों प्लस हो जाएगा 1/25 equal to 1/10. 1/v equal to 1/10 minus 1/25. 1/v बच्चों इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे 55 minus 2.
1/v इक्वल टू 3/5। ठीक है बच्चों, तो v क्या आ जाएगा, उल्टा करेंगे, 50/3 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये मिल गया v, और v आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा आपको मालूम है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन राइट साइड। इससे ये पता चलता है पॉजिटिव देख के कि व्हाट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, चलिए आपको u निकल गया, v अभी आपको निकालना है, v निकल गया, साइज निकालना है आपको, साइज यानी अगर h दिया है तो h डैश निकाल सकते हैं। तो बोलिए बच्चों कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है m इक्वल टू v/u इक्वल टू h डैश बाई h। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। तो व्हाट इज v आई गॉट 50/3। ये नीचे डिवाइड में है ना बच्चों, मैंने सिंबल लिख दिया, नहीं तो नीचे में डिनोमिनेटर में है u, तो मैं बगल में लिख दूंगा इंटू -25 इक्वल टू h डैश बाई h आई गॉट 5। ठीक है बच्चों, ये 25 2s और 5 2s, आई एम गोइंग टू गेट आंसर 10/3 इक्वल टू h डैश। सो h डैश इक्वल टू -10/3 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये h डैश देख के लग रहा है आपको कि ये क्या इमेज बना बच्चों, बताइए, उल्टा बना, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड जब भी होता है बच्चों क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड एंड रियल। तो बच्चों आप h डैश का साइन देख के भी बोल सकते हो नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल है कि वर्चुअल है। v को देख के भी बोल सकते हैं कि रियल है कि वर्चुअल है। v अगर राइट साइड में बना है तो वो रियल है, v इज फॉर्म्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज वर्चुअल। इज इट क्लियर बच्चों? तो ऐसे करके आप जो है आराम से कर सकते हो, नेचर भी आ गया, सब कुछ आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुंदर से लिख दीजिए। अभी हम बनाएंगे इसका रे डायग्राम। क्या बनाएंगे बच्चों, रे डायग्राम। बड़ा आसान है, आपको ने बताया था रे डायग्राम बनाने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए बच्चों, एक चाहिए f, दूसरा चाहिए u। f से पूरा प्रोफाइल बन जाता है यहाँ पे, और u से आपको ये पता चल जाता है कि अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। ठीक है बच्चों, डुक 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 डुक। चलिए बताइए f क्या है, f इज़ 10। तो बच्चों ये आएगा 10, ये आ जाएगा 20, दिस इज़ f1, दिस इज़ 2f1, दिस इज़ f2, दिस इज़ 2f2। u क्या है बच्चों, u इज़ -25। तो 25 देखिए जस्ट इसका थोड़ा पीछे आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया बियॉन्ड 2f1। वो तो मालूम है यहाँ से पासेस थ्रू फोकस। इज इट क्लियर? उसके बाद बच्चों बताइए क्या होगा, फिर जैसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा ये, बताइए कहाँ पे बनेगा, आपने रखा दिस, तो ये इसको हम लोग ने ऐसे करके दूर ले जाना। तो इट इज़ फॉर्म्ड व्हाट, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। ये 2f2 था बच्चों, तो ये बन गया आपका इमेज। और देखिए एनलार्ज भी है, ये ऑब्जेक्ट छोटा है, ये इमेज थोड़ा सा बड़ा है। दिस इज द रे डायग्राम। इज इट क्लियर बच्चों? आसान है बस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। तो इसको अच्छी तरह से बना दीजिए, सुंदर से बना दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों मैं 11 पूरा करूँगा नहीं, बस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप पूरी तरह से कर लेना, ठीक है? तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 में, ए कॉन्केव लेंस, सो दे टॉकिंग अबाउट concave lens looks like curved inward. Where is focus? This is F. No, this is not F, my dear student. इसका F यहाँ है, तो आप इसको बोल सकते हो F, and F is negative. And we have how many cases? We have 2 cases and both the cases are virtual. तो बच्चों
कॉन्केव लेंस बोलते साथ ही ये सारा चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो एफ कितना दिया है बच्चों 15 सेंटीमीटर, तो यानी ये जो डिस्टेंस है, ये नहीं भाई, ये डिस्टेंस ये है 15 सेंटीमीटर। Forms an image 10 centimeter from the lens. So image is at a distance of 10 centimeter from the lens. तो image is V 10 centimeter. तो यहाँ बच्चों इमेज क्या बनता है मालूम है, वर्चुअल इमेज बनता है, दोनों लेफ्ट साइड बनता है। तो ये मान लो बच्चों इमेज है, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये है 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? फ्रॉम द लेंस हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है बच्चों, यानी आपको निकालना है u, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखोगे। तो आपको मालूम है व्हेनेवर इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके बच्चों, उसके बाद आपको निकालना है रे डायग्राम भी बनाना है। क्या बनाना है? रे डायग्राम। अब बताइए बच्चों u कैसे निकालेंगे? डेफिनेटली यूज द फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। f को यहाँ पुट करेंगे, v को यहाँ पुट करेंगे, आराम से u निकल जाएगा। साइन कन्वेंशन बताइए। आप देख रहे हैं f इज नेगेटिव, v इज नेगेटिव, v इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? और आप ये रे डायग्राम को बना सकते हैं। जो लाइट रे सीधा जा रहा है पासिंग थ्रू, नो 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 नो, इट इज नॉट पासिंग थ्रू फोकस, इट इज डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम फोकस, एंड द लाइट रे विच इज गोइंग ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट। ये दोनों मिलेंगे नहीं, इसको बैक करेंगे तो बच्चों ये यहाँ मिलेगा, तो ये जो बनेगा बच्चों इसको बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे बच्चों? इमेज। तो ऐसे करके बच्चों रे डायग्राम भी यहाँ बन गया और आपने इसको भी यहाँ से कर दिया। ठीक है बच्चों, आसान है। तो आपका लास्ट एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हमने किया है अभी, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। बाकी जो क्वेश्चन है मिरर का है वो भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 ने बोला है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हुज पावर इज -2 डायप्टर। पावर इज -2 डायप्टर। आपको मालूम है फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर, फोकल लेंथ इज 1/-2, फोकल लेंथ इज -½ फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर। इज इट क्लियर? और ये माइनस से क्या पता चलता है? माइनस से ये पता चलता है इट इज़ कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ब्रेन में अच्छी तरह से चिपका लीजिए कि जब भी कॉन्वेक्स वर्ड आता है आप फोकस को पॉजिटिव ही मानिए, मिरर हो लेंस हो, और जब भी कॉनकेव आता है आप नेगेटिव मान लीजिए, मिरर हो लेंस हो। तो यहाँ नेगेटिव है तो ये कॉनकेव लेंस है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था 16, इन विच कौन द P was given, you are supposed to find F and the type of lens। और आपको और एक चीज़ निकालना था, टाइप ऑफ लेंस। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है बच्चों। आपको पावर दिया है, सेम पावर सब एक ही तरह क्वेश्चन है बच्चों, पावर दिया है। ठीक है, तो पावर इज 1.5 डायप्टर प्लस दिया है। तो व्हाट इज फोकस बच्चों? यू नो फोकस इज 1/पावर, फोकस इज 1/1.5। ठीक है बच्चों, आप इसको करोगे 1.5 को आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, चलो ठीक है ऐसा करो ना, 10/10। तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 15। 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो F इक्वल टू 2/3। तो यू गॉट पावर एस 2/3 मीटर। पॉजिटिव देख के क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव में नेगेटिव मैंने बताया था। ये पॉजिटिव देख क्या बोलेंगे? इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। क्या है बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस। इज इट क्लियर? तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर का न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो रहा है। तो
तो आप लोग बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ये सबको सुंदर से लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। और संडे को शाम को बच्चों मैं आपको टेस्ट लूँगा ये चैप्टर का। इज़ इट क्लियर? ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट है तो फ़ोन करिए एंड आई होप दिस चैप्टर इज़ ओवर एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी मे बी लुकिंग फॉर सम अदर चैप्टर। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, मेहनत करते रहिए। ओके, मेहनत भी करिए, खेलिए कूदिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ बैलेंस लाइफ रखिए, एक तरफ शिफ्ट मत हो जाइए, तब देखिए बड़ा मज़ा आएगा। और वीडियो को बराबर देखिए। ओके, 10th वीडियो देखने से पहले 9th को देख लीजिए, 9th को देखने से पहले 8th को देख लीजिए, ऐसे करके समझते हुए चलिए, लॉजिक डेवलप करिए, फिर देखिए सारा सब्जेक्ट बड़ा आराम हो जाता है। तो ये चैप्टर को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है रे डायग्राम दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चों, तो कॉनकेव मिरर का 6 रे डायग्राम था, कॉन्वेक्स मिरर का 2 था, 8 हो गया। एंड वी हैव 6 रे डायग्राम्स इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड 2 रे डायग्राम इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। टोटल वी हैव 8 डायग्राम्स हियर, 8 + 8 16 डायग्राम्स वी हैव। वो पूरा 16 डायग्राम को दिमाग में अच्छी तरह से छाप लीजिए। Okay my dear students, so with this I end my video and I wish you all the very best. For any doubt kindly call me. My number is 9933227796. Is it clear? Okay my dear students.